English grammar. Here is the comprehensive breakdown of English grammar. This structure covers everything from basic foundations to advanced synthesis. 1. Parts of speech. This is the fundamental building block of the language, identifying how words function within a sentence. Noun, naming words for people, places, things, or ideas, proper, common, abstract, collective, countable, uncountable. Pronoun, words used to replace nouns, personal, possessive, reflexive, relative, demonstrative. Adjective, words that describe or modify nouns, degrees of comparison, positive, comparative, superlative. Verb, action or state words, finite, non-finite, transitive, intransitive, regular, irregular. Adverb, words that modify verbs, adjectives, or other adverbs, manner, place, time, frequency, degree. Preposition, words showing relationship in time, space, or direction, in, on, at, between, among. Conjunction, joining words, coordinating, and, but, subordinating, because, although, correlative, either or are. Interjection, words expressing strong emotions, oh, wow, ouch. 2. The tense system. Understanding the timeline of actions. Present tense, simple present, present continuous, present perfect continuous. Past tense, simple past, past continuous, past perfect continuous. Future tense, simple future, future continuous, future perfect continuous. 3. Sentence structure and syntax. How words are organized to create meaning. Subject and predicate, identifying the doer and the action description. Types of sentences, declarative, statements, interrogative, questions, imperative, commands, exclamatory, emotions. Simple, compound, and complex sentences, using clauses to build varied sentence structures. Subject-verb agreement, syntax, ensuring the verb matches the number and person of the subject. 4. Auxiliaries and modals, helping verbs that express mood or necessity. Primary auxiliaries, be, is, am, are, do, does, did, have, has, have, had. Modal auxiliaries, can, could, ability, may, might, permission, possibility, should, must, ought to, obligation, will, would, intent. 5. Transformation of sentences, changing the form of a sentence without changing its meaning. Active and passive voice, focusing on the doer versus the receiver of the action. Direct and indirect speech, narration, reporting someone's words. Degree transformation, changing a sentence from comparative to superlative or positive. 6. Articles and determiners. Articles, definite, the, and indefinite, a, an. Determiners, demonstratives, this, that, quantifiers, much, many, some, any, little, few. 7. Non-finite verbs. Verbs that do not function as the main verb and are not limited by tense or person. Infinitives, the, to plus verb, form, e.g., to run. Gerunds, the, verb plus ing, form acting as a noun, e.g., smoking is injurious. Participles, present, ing, past, ed, n, and perfect, having plus past participle, used as adjectives or to form tenses. 8. Advanced concepts. Conditionals, if, clauses, 0, first, second, and third conditionals. Question tags, short questions added at the end of statements, e.g., you are coming, aren't you? Phrasal verbs, verbs combined with prepositions to create new meanings, e.g., look after, bring up. Punctuation, proper use of capital letters, commas, semicolons, colons, and apostrophes. 9. Vocabulary expansion. Synonyms and antonyms, similar and opposite meanings. One-word substitution, replacing a long phrase with a single word. Idioms and phrases, expressions with figurative meanings. Prefixes and suffixes, word formation techniques. अंग्रेजी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, लेकिन इसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ने पर यह बहुत आसान हो जाता है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पूरा सिलेबस हिंदी व्याख्या के साथ दिया गया है। 1. शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यह अंग्रेजी व्याकरण की नींव है। इसमें हम सीखते हैं कि वाक्य में शब्दों का क्या कार्य है। संज्ञा, नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, लाओ। सर्वनाम, प्रोनाउन, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही, शी, दे। विशेषण, एडजेक्टिव, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे गुड, ब्लू, ब्रेव। क्रिया, वर्ब, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। जैसे ईट, प्ले, स्लीप।
क्रिया विशेषण एडवर्ब जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे स्लोली, वेरी, फास्ट। संबंध बोधक प्रेपोजिशन जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, जैसे इन, ऑन, एट। समुच्चय बोधक कंजंक्शन जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज। विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन जो मन के अचानक उठने वाले भावों को दर्शाते हैं, जैसे अलास, वाओ। 2. काल टेंस। टेंस हमें बताते हैं कि कोई काम किस समय हुआ है और कितना हुआ है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। भूतकाल पास्ट टेंस जो बीत चुका है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। भविष्यकाल फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3. वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स। इसमें वाक्य बनाने के नियमों का अध्ययन किया जाता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वाक्य का वह हिस्सा जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट, और जो बात हो रही है, प्रेडिकेट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, साधारण, असर्टिव, प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव, आज्ञावाचक, इंपेरेटिव और विस्मयबोधक, एक्सक्लेमेटरी वाक्य। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता के वचन सिंगुलर प्लूरल के अनुसार सही क्रिया का चुनाव करना। 4. सहायक क्रियाएं और मोडल्स और ऑक्सिलरीज। ये मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं और क्षमता, अनुमति या संभावना को दर्शाती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज, एम, आ, विस, वर, डू, डज, डड, हैज, हैव, हैड। मोडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, will, would। 5. वाच्य और कथन, वॉइस इन नरेशन। ये वाक्यों को अलग तरीके से कहने का तरीका है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जब कर्ता सब्जेक्ट खुद काम करता है तो वह एक्टिव होता है, और जब कर्म ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है तो वह पैसिव होता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट या उसे अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट। 6. लेख के नियम, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स ए, एन और द का सही उपयोग। डिटर्मिनर्स सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल आदि का प्रयोग। 7. गैर सीमित क्रियाएं, नॉन फाइनाइट्स। ये क्रियाएं काल टेंस के साथ नहीं बदलती। इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब जैसे टू प्ले। जेरंड, वर्ब प्लस इंग जैसे स्विमिंग। पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। 8. शब्दावली और अन्य, वोकैब्युलरी एंड मिसलेनियस। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द। इडियम्स और फ्रेजर्स, मुहावरे और लोकोक्तियां। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पंक्चुएशन, विराम चिन्हों, कॉमा, फुल स्टॉप, etc का सही प्रयोग। क्वेश्चन टैग्स, वाक्यों के अंत में छोटे प्रश्न जोड़ना जैसे isn't it। To start with the noun, let's break it down clearly. In the simplest terms, a noun is a naming word. It names everything we can see, feel, or talk about. 1. Definition. A noun is the name of a person, place, animal, thing, quality, state, or action. Person, Rahul, doctor, girl. Place, Patna, India, hospital. Thing, pen, mobile, water. Idea, state, freedom, love, childhood. 2. Types of nouns. There are 5 main categories of nouns that you need to know. Proper noun. The specific name of a particular person, place, or organization. It always starts with a capital letter. Examples, Ganga, New Delhi, Monday, Microsoft. Common noun. A general name given to every person or thing of the same kind or class. Examples, boy, city, river, book, teacher. Collective noun. A name given to a group or collection of persons or things taken as a whole. Examples, team, group of players, audience, group of listeners, flock, group of birds. Material noun. The name of a substance or matter of which things are made. Examples, gold, iron, milk, wood, cotton. Abstract noun. The name of a quality, action, or state which we cannot see or touch, but only think of or feel. Examples, quality, honesty, bravery. Action, laughter, movement. State, poverty, youth, death. 3. Classification by countability. Nouns are also divided into 2 categories based on whether they can be counted. Countable nouns, things we can count using numbers. They have singular and plural forms. Examples, book, books, apple, apples. Uncountable nouns, things we cannot count. They usually do not have a plural form. Examples, water, sugar, knowledge, music. 4. Noun,
Gender. Masculine denotes a male, father, lion. Feminine denotes a female, mother, lioness. Common denotes either male or female, student, doctor, friend. Neuter denotes non-living things, table, tree, pen. 5. Noun. Number. Singular denotes one person or thing, boy, chair. Plural denotes more than one, boys, chairs. 6. Noun. Case, the role in a sentence. Nominative case, when the noun is the subject, the dog barked. Objective case, when the noun is the object, I saw the dog. Possessive case, showing ownership, this is Ram's car. Here are some practice sentences to help you identify different types of nouns. I have varied the sentences to cover proper, common, collective, abstract, and material nouns. Practice exercise. Identify the nouns in the following sentences and try to name their type. Honesty is the best policy. Rohan bought a bottle of milk. The crowd gathered in front of the Red Fort. My mother wears a ring made of gold. A fleet of ships was seen in the harbor. Wisdom is better than strength. The class is studying English in April. Answer key, for your reference. Check your progress against these explanations. Sentence 1, honesty in policy, abstract nouns, ideas, qualities. Sentence 2, Rohan, proper noun, specific name. Bottle, common noun, general thing. Milk, material noun, substance. Sentence 3, crowd, collective noun, group of people. Red Fort, proper noun, specific place. Sentence 4, mother, common noun, relation, class. Ring, common noun, object. Gold, material noun, metal. Sentence 5, fleet, collective noun, group of ships. Ships, common noun. Harbor, common noun, place. Sentence 6, wisdom in strength, abstract nouns, feelings, states. Sentence 7, class, collective noun, group of students. English, proper noun, specific subject. April, proper noun, specific month. A pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition. For example, instead of saying, Rahul is a student, Rahul is smart, we say, Rahul is a student, he is smart. 1. Types of pronouns. Personal pronouns. These refer to specific people or things. They change based on the person. First person, the speaker, I, me, we, us. Second person, the listener, you. Third person, the person, thing spoken about, he, him, she, her, it, they, them. Possessive pronouns. These show ownership or possession. Examples, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Example, this pen is mine. Reflexive pronouns. Used when the object of a sentence is the same as the subject. They end in self or selves. Examples, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves. Example, he hurt himself. Demonstrative pronouns. These point to specific things. Examples, this, that, singular, these, those, plural. This, these refer to things nearby. That, those refer to things at a distance. Relative pronouns. These relate a clause or phrase to a noun or pronoun. They act as connectors. Examples, who, whom, whose, which, that. Example, the man who called you is my uncle. Interrogative pronouns. These are used to ask questions. Examples, who, which, what, whom, whose. Example, who is there? Indefinite pronouns. These refer to people or things in a general way, without being specific. Examples, someone, anybody, nobody, everyone, few, many, all. 2. Pronoun case chart. It is important to know how a pronoun changes depending on its role in a sentence. Subjective, I, we, you, he, she, it, they. Used as the subject. Objective, me, us, you, him, her, it, them. Used as the object. Possessive, my, mine, ours, your, yours, his, her, hers, its, their, theirs. Used to show ownership. 3. Practice. Replace the noun with a pronoun. Try to rewrite these sentences using the correct pronoun. Anita is a teacher. Anita teaches well. The boys are playing. The boys are tired. Give the book to Rahul. This is my car. This car is mine, my. Answers for check. She, personal third person. They, personal third person. Him, objective case. Mine, possessive pronoun. To truly master pronouns, you need to understand 3 tricky areas that often confuse learners: the difference between who and whom, the self words, and the owner words. 1. Subject vs.
Object, the, who, vs. whom, mystery. Pronouns change their form based on whether they are doing the action or receiving it. Subjective pronouns, these are the doers. Words, I, he, she, we, they, who. Example, he called me. He is the one doing the calling. Objective pronouns, these are the receivers. Words, me, him, her, us, them, whom. Example, I called him. He is the one being called. The shortcut, if you can answer a question with he, use who. If you answer with him, use whom. Question, whom wrote this? Answer, you wrote it right pointing arrow use who. Question, whom should I invite? Answer, invite him right pointing arrow use whom. 2. Reflexive vs. emphatic the, self, words. Words like myself, himself, and themselves have two different jobs. Reflexive job, when the action reflects back to the doer. Example, I cut myself while cooking. The action of cutting came back to me. Emphatic job, when you want to emphasize that I did it alone, or no one else did it. Example, I myself solved the entire problem. Here, myself is just for extra emphasis. 3. Pronoun vs. adjective, the, owner, words. This is where most people make mistakes. Some words show ownership but aren't actually pronouns, they are adjectives because they sit next to a noun. Possessive adjective, it must have a noun after it. Words, my, your, his, her, are, their. Example, this is my book. Opening parenthesis. Book is the noun. Possessive pronoun, it stands alone. It replaces the noun. Words, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Example, this book is mine. No noun follows, mine. 4. The, its, vs. its, trap. Its pronoun shows ownership for animals or non-living things. Example, the dog wagged its tail. Its contraction, short for it is or it has. Example, it's raining today. It is raining. Quick check. Which word is correct in these sentences? Whom are you talking to? The cat licked its paws. Between you and I, me, this is a secret. Answers, whom, because you are talking to him. It's ownership of the paws. Me, because, between, is a preposition, and we always use the objective case after it. An adjective is a word that describes, identifies, or quantifies a noun or a pronoun. Think of adjectives as adding color to a sentence. They tell us more about the size, shape, age, color, origin, or material of an object. For example, in the phrase, the brave soldier, the word brave is an adjective because it describes the soldier. 1. Types of adjectives. Adjectives of quality, descriptive. These show the kind or quality of a person or thing. Examples, large, honest, beautiful, bitter, cold. Sentence, he is an honest man. Adjectives of quantity. These show how much of a thing is intended. They are usually used with uncountable nouns. Examples, some, much, little, any, all, enough. Sentence, I have enough sugar. Adjectives of number, numeral. These show how many persons or things are meant. Examples, 5, few, many, several, first, second. Sentence, several boys were absent today. Demonstrative adjectives. These point out which person or thing is meant. Note, these are followed by a noun, unlike demonstrative pronouns. Examples, this, that, these, those. Sentence, that boy is very industrious. Interrogative adjectives. Used with nouns to ask questions. Examples, which, what, whose. Sentence, whose book is this? Possessive adjectives. Used to show ownership. Examples, my, our, your, his, her, its, their. Sentence, this is my office. 2. Degrees of comparison. Adjectives change their form to show comparison. There are 3 degrees. Positive degree, used when no comparison is made. Example, Ram is a tall boy. Comparative degree, used when comparing two people or things. Usually followed by than. Example, Ram is taller than Shyam. Superlative degree, used when comparing more than two people or things. Usually preceded by the. Example, Ram is the tallest boy in the class. 3. The order of adjectives. When you use more than one adjective before a noun, they usually follow a specific order. Opinion right pointing arrow, size right pointing arrow, age right pointing arrow, shape right pointing arrow, color right pointing arrow, origin right pointing arrow, material right pointing arrow, purpose.
Example, a beautiful, opinion, large, size, old, age, brown, color, Italian, origin, leather, material, bag. 4. Quick practice. Can you identify the adjectives and their types in these sentences? The lazy dog slept all day. I have 3 pens in my pocket. She is wearing a blue dress. Each student received a prize. Answers: lazy, quality. 3. Number. Blue, quality, color. Each, distributive, number. विशेषण एडजेक्टिव के बारे में कुछ और गहराई से समझते हैं, खासकर उन बारीकियों को जहां अक्सर गलतियां होती हैं। यहां इसकी विस्तृत व्याख्या हिंदी में दी गई है। 1. विशेषणों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। कई बार हम संज्ञा, नाउन या क्रिया, वर्ब में कुछ शब्द जोड़कर विशेषण बनाते हैं। संज्ञा से बॉय, लड़का, बॉयश, लड़के जैसा, गोल्ड, सोना, गोल्डन, सुनहरा। क्रिया से टॉक, बात करना, टॉकेटिव, बातूनी, टायर, थकना, टायरलेस, अथक। 2. विशेषणों का तुलनात्मक प्रयोग, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब हम तुलना करते हैं तो विशेषण के 3 रूप होते हैं। पॉजिटिव, सामान्य, जब किसी एक ही व्यक्ति की विशेषता बतानी हो, जैसे ही इज अ फास्ट रनर, वह एक तेज धावक है। कंपैरेटिव, तुलनात्मक, जब 2 लोगों के बीच तुलना हो, इसमें अक्सर अ जुड़ता है या मो का प्रयोग होता है। जैसे ही इज फास्टर देन रवि, वह रवि से तेज है। सुपरलेटिव, सर्वश्रेष्ठ, जब 2 से अधिक लोगों में सबसे अच्छा बताना हो, इसमें एस्ट या मोस्ट लगता है और इसके पहले द लगाना अनिवार्य है। जैसे ही इज द फास्टेस्ट रनर इन द टीम, वह टीम में सबसे तेज धावक है। 3. मच बनाम मैनी का अंतर। मैनी संख्या, इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स, जिन्हें गिना जा सके, के साथ होता है। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। मच मात्रा, इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें गिना न जा सके, के साथ होता है। जैसे देयर इज मच वाटर इन द जग, जग में बहुत पानी है। 4. फ्यू और लिटिल की बारीकियां। ये हिस्सा परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लिटिल फ्यू, इसका मतलब है ना के बराबर, नकारात्मक भाव। अ लिटिल ए फ्यू, इसका मतलब है थोड़ा सा, सकारात्मक भाव। द लिटिल द फ्यू, इसका मतलब है जो कुछ भी है वह पूरा। याद रखें, फ्यू का प्रयोग गिनने वाली चीज़ों के लिए और लिटिल का प्रयोग मात्रा, जैसे दूध, समय, धैर्य, के लिए होता है। 5. विशेषणों का स्थान, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। वाक्य में विशेषण 2 तरह से बैठ सकते हैं। एट्रीब्यूटिव, संज्ञा से ठीक पहले, जैसे द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड, यहाँ लेजी बॉय से पहले आया है। प्रेडिकेटिव, क्रिया, वर्ब के बाद, जैसे द बॉय इज लेजी, यहाँ लेजी क्रिया इस के बाद आया है। 6. विशेषणों का सही क्रम, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे विशेषण लगाने हो तो इस क्रम का पालन करें। विचार, ओपिनियन, राइट पॉइंटिंग एरो, आकार, साइज, राइट पॉइंटिंग एरो, आयु, एज, राइट पॉइंटिंग एरो, रंग, कलर, राइट पॉइंटिंग एरो, उत्पत्ति, ओरिजिन, राइट पॉइंटिंग एरो, पदार्थ, मटेरियल। उदाहरण: अ ब्यूटिफुल, विचार, ओल्ड, आयु, वाइट, रंग, इंडियन, उत्पत्ति, कॉटन, पदार्थ, शर्ट। अभ्यास, प्रैक्टिस, ना। नीचे दिए गए वाक्यों में सही विशेषण चुनें। I don't have much time today. She is the cleverest girl in the school. Give me a little, a few, sugar. उत्तर: much समय को गिना नहीं जा सकता। cleverest पूरे स्कूल से तुलना हो रही है। A little चीनी की मात्रा बताई जा रही है। A verb is arguably the most important part of a sentence. Without a verb, you cannot have a complete thought. It is a word that expresses an action, an occurrence, or a state of being. 1. The 3 phases of a verb. Action, physical or mental, what the subject is doing. Examples: run, eat, think, believe, jump. Sentence: he runs every morning. Occurrence: something that happens. Examples: become, happen, occur. Sentence: the accident happened yesterday. State of being, the condition of the subject. Examples: is, am, are, was, were, seem. Sentence: she is a lawyer. 2. Major types of verbs. Main verbs, lexical verbs. These carry the real meaning of the action. Transitive verbs, they require an object to complete their meaning. Example: he kicked the ball. Kicked what? The ball. Intransitive verbs, they do not need an object to make sense. Example: she laughed. The sense is complete without an object. Be helping verbs, auxiliary verbs. These help the main verb show the tense, mood, or voice. Primary auxiliaries: be, is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had. Modals:
can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. These show possibility, ability, or necessity. See linking verbs. These do not show action. Instead, they link the subject to more information about the subject. Common linking verbs is am, are, seem, become, look, feel. Example, the food smells delicious. Opening parenthesis. Smells links food to the adjective delicious. 3. Regular vs. irregular verbs. This is how verbs change when moving to the past tense. Regular verbs form the past tense by adding ed a d. Play right pointing arrow played, walk right pointing arrow walked. Irregular verbs, these follow no specific rule and change completely. Go right pointing arrow went right pointing arrow gone, eat right pointing arrow ate right pointing arrow eaten, put right pointing arrow put right pointing arrow put. 4. The concept of V1, V2, V3 verb forms. In English grammar, verbs usually have 5 forms, but the first 3 are essential for tenses. V1 base form go, eat, write. Used for present tense. V2 past simple went, ate, wrote. Used for past tense. V3 past participle gone, eaten, written. Used for perfect tenses. V4 present participle going, eating, writing. Base plus ing. V5 ses form goes, eats, writes. Used for third person singular. 5. Finite vs. non-finite verbs. Finite verbs change their form according to the tense or the subject. Example, he plays, / they play, / he played. Non-finite verbs do not change based on the subject or tense. Infinitive, to plus verb, e.g., I love to swim. Gerund, verb plus ing acting is a noun, e.g., swimming is good. Participle, acting is an adjective, e.g., the broken window. Quick check. Identify the verb and its type in these sentences. The birds are flying in the sky. She seems happy today. I can speak English. He bought a new car. Answers are helping, flying, main. Seems, linking. Can, modal, speak, main. Bought, transitive main verb, car, is the object. क्रिया वर्ब के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं जो वाक्यों को सही ढंग से लिखने और बोलने के लिए बहुत जरूरी हैं। 1. फाइनाइट vs नॉन फाइनाइट वर्ब्स, सकर्मक और अकर्मक से अलग। यह विभाजन इस आधार पर है कि क्रियाकर्ता सब्जेक्ट या काल टेंस के अनुसार बदलती है या नहीं। फाइनाइट वर्ब्स परिमित क्रिया। ये क्रियाएं वाक्य के कर्ता के नंबर एकवचन, बहुवचन और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं। इंग्लिश, दे चेंज देयर फॉर्म बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एंड टेंस। Example, he plays cricket. Present, they play cricket. Subject changed. He played cricket. Tense changed. Non-finite verbs, अपरिमित क्रिया। ये क्रियाएं कर्ता या काल के बदलने पर भी वैसी ही रहती हैं। इनके मुख्य 3 प्रकार हैं। Infinitive to plus V1, I want to go. / he wants to go. यहाँ to go नहीं बदला। Gerund V1 जोड़ें जब क्रिया संज्ञा नाउन का काम करे। Smoking is injurious. पार्टिसिपल जब क्रिया विशेषण एडजेक्टिव का काम करे। अ ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। 2. मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल सहायक क्रियाएं। मॉडल्स का प्रयोग मूड या मैनर बताने के लिए होता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कभी भी कर्ता सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलते, जैसे कैन हमेशा कैन ही रहेगा, कैन्स नहीं होगा। कैन कुड क्षमता एबिलिटी बताने के लिए। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ। मे माइट अनुमति, परमिशन या संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। शुड, मस्ट, ऑट टू सलाह या कर्तव्य, ड्यूटी, एडवाइस के लिए। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, आपको नियमों का पालन करना ही चाहिए। 3. कॉजेटिव वर्ब्स, प्रेरणार्थक क्रियाएं। जब कर्ता खुद काम न करके किसी और से काम करवाता है तो कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से हैव, गेट, मेक, लेट, हेल्प। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब प्लस पर्सन प्लस एक्शन। एग्जाम्पल, आई मेड हिम राइट अ लेटर, मैंने उससे पत्र लिखवाया। एग्जाम्पल, आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। 4. फ्रेजल वर्ब्स, संयुक्त क्रियाएं। जब एक क्रिया वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ जाता है तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। लुक, देखना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर मदर। लुक फॉर, ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। गिव अप, हार मान लेना या छोड़ देना। नेवर गिव अप। 5.
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कर्ता क्रिया तालमेल। अंग्रेजी व्याकरण का सबसे बुनियादी नियम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब वी प्लस एस एस, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब बेस फॉर्म। नोट: हिंदी में हम कहते हैं वह जाता है और वे जाते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में ही गोज सिंगुलर, दे गो प्लूरल। क्विक प्रैक्टिस अभ्यास ई। इन वाक्यों में क्रिया का सही रूप पहचानें। शी wants to buy a car. I make him cry yesterday. Swimming is a good exercise. Answers: wants she एकवचन है, made yesterday भूतकाल की बात कर रहा है, is gerund swimming यहाँ एकवचन संज्ञा की तरह है। An adverb is a word that modifies or adds more information to a verb, an adjective, or another adverb. In simple terms, while an adjective describes a noun, an adverb describes an action or a quality. 1. What does an adverb do? उदाहरण के साथ, modifying a verb, he runs quickly. How does he run? Quickly. Modifying an adjective, the tea is very hot. How hot? Very. Modifying another adverb, she speaks quite clearly. How clearly? Quite. 2. Types of adverbs क्रिया विशेषण के प्रकार. Adverb of manner, तरीका. It tells us how an action is done. Words: slowly, bravely, happily, fast, hard. Example: the soldiers fought bravely. सैनिक वीरता से लड़े. Adverb of time, समय. It tells us when an action happens. Words: now, yesterday, soon, late, today, early. Example: I will call you soon. मैं तुम्हें जल्द ही फोन करूंगा. Adverb of place, स्थान. It tells us where an action happens. Words: here, there, everywhere, upstairs, out. Example: please sit there. कृपया वहां बैठें. Adverb of frequency, बारंबारता. It tells us how often an action occurs. Words: always, never, often, rarely, twice. Example: he never tells a lie. वह कभी झूठ नहीं बोलता. Adverb of degree, quantity, परिमाण. It tells us to what extent or how much. Words: very, to, almost, extremely, quite. Example: I am fully prepared. मैं पूरी तरह से तैयार हूँ. 3. Adjective vs. Adverb हिंदी व्याख्या. अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं. याद रखें. Adjective संज्ञा, noun, की विशेषता बताता है. She is a careful driver. यहाँ careful ड्राइवर के लिए है. Adverb काम करने के तरीके को बताता है. She drives carefully. यहाँ carefully गाड़ी चलाने के तरीके के लिए है. नियम: अधिकतर एडजेक्टिव्स में लाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है. स्लो राइट पॉइंटिंग एरो स्लो लाई, क्विक राइट पॉइंटिंग एरो क्विक लाई, बैड राइट पॉइंटिंग एरो बैड लाई. एक्सेप्शन: फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं होता, केवल फास्ट ही रहता है. 4. द पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स, स्थान का नियम. वाक्य में एडवर्ब कहाँ लगाना है, इसके कुछ बुनियादी नियम हैं. मैनर, प्लेस, टाइम, ये आमतौर पर वाक्य के अंत में या क्रिया के बाद आते हैं. Example: she sang sweetly. Frequency, ये हमेशा मुख्य क्रिया में वर्ब से पहले आते हैं. Example: I always go to the temple. यहाँ go क्रिया है, always उससे पहले आया है. Note: अगर is am are है तो उसके बाद आता है. He is always late. 5. Quick practice अभ्यास. Identify the adverb and its type. She arrived early. The water was extremely cold. He spoke loudly in the meeting. They sometimes play cricket. Answers: early, time. Extremely, degree. Loudly, manner. Sometimes, frequency. To master adverbs, we need to look at how they are formed, how they are positioned in a sentence, and the specific rules for comparing them. 1. Formation of adverbs. Adverb कैसे बनते हैं? Most adverbs are formed by adding lie to an adjective, but there are spelling rules to follow. General rule: adjective plus lie. Kind right pointing arrow kindly, soft right pointing arrow softly ends in y, change y to I and add lie. Happy right pointing arrow happily. Easy right pointing arrow easily ends in l, replace e with y. Gentle right pointing arrow gently, terrible right pointing arrow terribly, no change, irregular, some words look exactly the same as adjectives and adverbs. Fast, never use fastly. Hard, he works hard. Late, he arrived late. 2. Degrees of comparison, तुलना के स्तर. Just like adjectives, adverbs also have 3 degrees of comparison. Positive, used for a single action. Example: she runs fast. Comparative, used to compare two actions, usually with, than.
Example, she runs faster than me. Longer adverbs, she speaks more clearly than him. Superlative, used to compare more than two actions. Example, she runs the fastest of all. Longer adverbs, she speaks the most clearly in class. 3. The position of adverbs, MPT rule. If a sentence has multiple adverbs, manner, place, and time, they usually follow this specific order. Manner, how, right pointing arrow place, where, right pointing arrow time, when, correct, he sang beautifully, M, at the concert, P, yesterday, T. Incorrect, he sang yesterday beautifully at the concert. 4. Confusing pairs, अक्सर होने वाली गलतियां. Hard vs. hardly. Hard means with great effort, strength. Example, he works hard. वह मेहनत करता है. Hardly means almost not at all, negative. Example, he hardly works. वह मुश्किल से ही काम करता है, कामचोर है. Late vs. lately. Late, opposite of early. Example, I arrived late. Lately means recently, हाल ही में. Example, have you seen him lately? 5. Adverbs that modify entire sentences. Sometimes an adverb describes the speaker's attitude toward the whole sentence rather than just the verb. Luckily, I found my keys. Honestly, I don't know the answer. Practice exercise. Choose the correct word for each sentence. The train moved, slowly, through the tunnel. I can, hardly, hear you, please speak up. She finished the test, more quicklier, than I did. They have been very busy, lately. Answers, slowly, modifying the verb, moved. Hardly, meaning, almost not. More quickly, correct comparative form for, lie, adverbs. Lately, meaning, recently. A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. They act as connecting tissue that tells us the relationship between people, objects, and locations. In short, prepositions usually tell us where something is or when something happened. 1. Types of prepositions, संबंध बोधक के प्रकार. A. Preposition of place, स्थान. These describe the position of a person or thing in relation to another. In, inside a space, in the room, in Bihar. On top of a surface, on the table. At, a specific point, at the door, at the bus stop. Under, below, lower than something. Between, in the middle of two things. Among, in the middle of more than two things. B. Preposition of time, समय. These indicate when something happens. At, for a precise time, at 5 p.m., at sunrise. On, for days and dates, on Monday, on the 15th of August. In, for months, years, centuries, and long periods, in April, in 2026, in the morning. During, within a period of time. C. Preposition of direction, disha. These show the movement from one place to another. 2. Toward a destination, going to school. Into, movement toward the inside of something, he jumped into the river. Across, from one side to the other. Through, moving inside a 3D space, through the tunnel. 2. Tricky pairs, common mistakes, अक्सर होने वाली गलतियां. Between, vs, among. Between, used for two people or things. Example, distribute these sweets between Ravi and Amit. Among, used for more than two people or a group. Example, distribute these sweets among the students. In, vs, into. In, shows a state of rest, sthir avastha. Example, he is in the room. Into, shows motion or movement, gati. Example, he walked into the room. Since, vs, for. Since, used for a specific point in time, nishchit samay. Example, I have been here since 9 a.m. For, used for a duration or period of time, samayavdhi. Example, I have been here for 3 hours. 3. Fixed prepositions, nishchit sambandh bodhak. In English, certain words are always followed by specific prepositions. You must memorize these. Afraid of, I am afraid of dogs. Listen to, please listen to me. Good at, he is good at mathematics. Believe in, I believe in hard work. Responsible for, you are responsible for this task. 4. Quick practice, abhyas. Fill in the blanks with the correct preposition. The book is _ the table. I will meet your _ 10 o'clock. She is traveling _ train. The cat jumped _ the bucket. He has been living in Patna _ 2010. Answers, on, surface. At, exact time. By, mode of transport. Into, movement. Since, point of time. Prepositions संबंधबोधक अंग्रेजी व्याकरण का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं क्योंकि अक्सर इनके हिंदी अर्थ और अंग्रेजी प्रयोग में अंतर होता है.
आइए कुछ और गहराई से समझते हैं। 1. Prepositions of movement, गति दर्शाने वाले शब्द। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ती है तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। 2. लक्ष्य या गंतव्य, डेस्टिनेशन के लिए। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ। टूवर्ड्स, दिशा, डायरेक्शन बताने के लिए, जरूरी नहीं कि आप वहां पहुंचे ही। एग्जाम्पल, ही इज वॉकिंग टॉवर्ड्स द स्टेशन। वह स्टेशन की ओर जा रहा है। अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ पार करना। एग्जाम्पल, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। वह नदी के पार तैर कर गया। थ्रू, किसी बंद स्थान जैसे सुरंग या जंगल के बीच से गुजरना। एग्जाम्पल, द ट्रेन पास थ्रू ए टनल। ट्रेन सुरंग के बीच से गुजरी। 2. बिसाइड, बनाम, बिसाइड्स, अक्सर होने वाली गलती। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। बिसाइड इसका अर्थ है बगल में या के पास, बाय द साइड ऑफ। एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। जाओ और अपने पिता के बगल में बैठो। बिसाइड्स इसका अर्थ है के अलावा या के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। एग्जाम्पल, बिसाइड्स इंग्लिश, ही स्पीक्स हिंदी। अंग्रेजी के अलावा वह हिंदी भी बोलता है। 3. Prepositions with vehicles, वाहनों के साथ प्रयोग। बाय, जब हम यात्रा के साधन की बात करते हैं, बाय बस, बाय कार, बाय प्लेन। एग्जाम्पल, आई गो टू ऑफिस बाय बस। इन, ऑन, जब हम वाहन के अंदर की स्थिति बताते हैं। इन, छोटी गाड़ियां जहां आप खड़े नहीं हो सकते, इन अ कार, इन अ टैक्सी। ऑन, बड़े वाहन जहां आप चल फिर सकते हैं, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ शिप। 4. Appropriate, fixed prepositions, निश्चित संबंध बोधक। अंग्रेजी में कुछ शब्दों के साथ हमेशा एक खास preposition ही आता है। परीक्षा के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंग्री विद, किसी व्यक्ति से नाराज होना, आई एम एंग्री विद यू। एंग्री एट, किसी बात पर नाराज होना। ही वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर। डाई ऑफ, बीमारी से मरना। ही डाइड ऑफ कैंसर। डाई फ्रॉम, किसी अन्य कारण जैसे भूख या घाव से मरना। ही डाइड फ्रॉम ओवरईटिंग। प्रेफर टू, पसंद करना। आई प्रेफर टी टू कॉफी। यहाँ दंत नहीं लगेगा। कंग्रेचुलेट ऑन, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। 5. Prepositional phrases, वाक्यांश। कभी कभी preposition एक समूह में आते हैं। In front of, के सामने, there is a park in front of my house. Instead of, के बजाय, take milk instead of tea. In spite of, के बावजूद, he came in spite of the rain. 6. वाक्य के अंत में preposition का प्रयोग। पुरानी अंग्रेजी में वाक्य के अंत में preposition नहीं रखा जाता था, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में ये सामान्य है। Correct. What are you looking at? Correct. Who are you talking to? अभ्यास, practice. Divide the property underscore the 4 brothers. Between, among. She has been ill underscore Monday. For, since. Are you afraid underscore spiders? Of, from. The thief jumped underscore the wall. Over, on. उत्तर, answers. Among 4 भाइयों की बात हो रही है। Since निश्चित दिन, Monday, है। Of afraid के साथ हमेशा of आता है। Over एक तरफ से दूसरी तरफ कूदने के लिए over का प्रयोग होता है। A conjunction is a word that joins words, phrases, or clauses together. Think of them as the glue of the English language. Without conjunctions, we would have to speak in very short, choppy sentences. 1. Types of conjunctions, समुच्चय बोधक के प्रकार। A. Coordinating conjunctions, समानपदीय. These join words or sentences of equal importance. You can remember them with the acronym FANBOYS. For के लिए कारण. And, or. No, ना ही. But, लेकिन. और, या. Yet फिर भी. So, इसलिए. A. Example, I like tea and coffee. Slash. He is small but strong. B. Subordinating conjunctions, आश्रित. These join a dependent clause, which cannot stand alone, to an independent clause. They often show a relationship of time, cause, or condition. Words, because, although, if, since, unless, until, while, after, before. Example, I stayed at home because it was raining. Example, if you work hard, you will pass. C. Correlative conjunctions, सहसंबंध बोधक. These always travel in pairs. You cannot use one without the other in the same context. Either, or, या तो. या. Neither, no, ना तो. ना ही. Not only, but also, केवल यह नहीं. बल्कि वह भी. Both, and, दोनों. और, A. Example, neither Ram nor Shyam came to the party. 2. Key rules and common mistakes, महत्वपूर्ण नियम. Although, even though, के साथ, yet. अक्सर लोग, although, के साथ, but, लगा देते हैं, जो गलत है.
ऑल्दो के साथ या तो येट आता है या सिर्फ एक कोमा आता है। इनकरेक्ट, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। करेक्ट, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। अनलेस, vs until। until समय टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। unless शर्त कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, वेट हियर until he come back। समय। एग्जाम्पल, यू विल फेल unless you study। शर्त, लेस्ट के साथ शुड। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि। इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है और यह खुद में नकारात्मक नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं लगाते। एग्जाम्पल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शॉल फॉल। धीरे चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। 3. कनेक्टिंग आइडियाज हिंदी व्याख्या। कॉन्ट्रास्ट विरोध। बट, स्टिल, येट, ऑल्दो, हाउएवर। रीजन कारण। बिकॉज, एज, सिंस, फॉर। चॉइस विकल्प। और, आइदर, और, नाइदर डॉट नो। टाइम समय। when, while, before, after, until। 4. Quick practice अभ्यास। Fill in the blanks with the correct conjunction. He is very rich, underscore he is not happy. I will not go, underscore it stops raining. Until, unless. She is underscore beautiful, underscore intelligent. Not only, but also. Work hard, underscore you should fail. Answers, but, yet, contradiction. Until, time related. Not only, but also lest, should के साथ प्रयोग। इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक व्याकरण का वह भाग है जिसका उपयोग मन के अचानक उठने वाले भावों जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, डर या घृणा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई व्याकरणिक संबंध नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। इनके अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। 1. टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस भावों के आधार पर। ए. जॉय खुशी के लिए, जब हम बहुत खुश होते हैं या किसी जीत का जश्न मनाते हैं। वर्ड्स, हरा, वाओ, ये, हा हा। एग्जाम्पल, हरा, वी वॉन द मैच। हुर्रे, हम मैच जीत गए। बी. सौरोप दुख के लिए, जब हम दुखी होते हैं या किसी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। वर्ड्स, अलास, ओ, आह, आउच। एग्जाम्पल, अलास, ही इज नो मोर। अफसोस, वह अब नहीं रहे। सी. सरप्राइज आश्चर्य के लिए, जब कोई ऐसी चीज होती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। वर्ड्स, वॉट, ओ, वाओ, अमेजिंग, रियली। एग्जाम्पल, वॉट, यू फेल द एग्जाम। क्या तुम परीक्षा में फेल हो गए। डी. अप्रूवल प्रेज शाबाशी या प्रशंसा के लिए, जब हम किसी के काम की तारीफ करते हैं। वर्ड्स, ब्रावो, वेल डन, ब्रिलियंट। एग्जाम्पल, ब्रावो, यू प्लेड वेरी वेल। शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले। ई. अटेंशन ध्यान खींचने के लिए, जब हमें किसी को अपनी ओर आकर्षित करना हो या चुप कराना हो। वर्ड्स, लिसन, लुक, हश, behold। एग्जाम्पल, हश, द बेबी इज स्लीपिंग। खामोश, बच्चा सो रहा है। 2. मेजर रूल्स जरूरी नियम। स्वतंत्रता, इंटरजेक्शन का वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप इसे वाक्य से हटा भी दें तो भी वाक्य का मुख्य अर्थ बना रहता है। एग्जाम्पल, वाओ, द सनसेट इज ब्यूटिफुल, राइट पॉइंटिंग एरो, द सनसेट इज ब्यूटिफुल। चिन्ह, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना अनिवार्य है। कैपिटल लेटर चून की विस्मयादिबोधक चिन्ह एक वाक्य के अंत जैसा प्रभाव डालता है, इसलिए इसके बाद आने वाला अगला शब्द हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। करेक्ट, अलास, ही लॉस्ट हिज वॉलेट। 3. क्विक प्रैक्टिस अभ्यास। सही इंटरजेक्शन चुनें। हरा, अलास, माई ग्रैंडफादर इज वेरी सिक। ब्रावो, आउच, दैट नीडल रियली हर्ट मी। वाओ, वॉट, यू लुक स्टनिंग इन दिस ड्रेस। वेल डन, ओ, यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आंसर्स, उत्तर, अलास, दुख का भाव। आउच, अचानक दर्द का भाव। वाओ, प्रशंसा का भाव। वेल डन, शाबाशी का भाव। हमने अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के सभी 8 भागों को पूरा कर लिया है। टेंस काल अंग्रेजी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हमें बताता है कि कोई कार्य, एक्शन किस समय हुआ है और उसकी स्थिति, स्टेटस क्या है। अंग्रेजी में मुख्य रूप से 3 काल होते हैं और प्रत्येक के 4 उप प्रकार सबटाइप्स होते हैं जिससे कुल 12 टेंसेस बनते हैं। 1. मुख्य प्रकार में टाइप्स। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो समय आने वाला है। 2. वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। अ प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट। इसका प्रयोग नियमित आदतों, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ और सामान्य कार्यों के लिए होता है।
पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। रूल, सब प्लस V1 S with third person singular plus OBJ। एग्जाम्पल, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम अभी बोलते समय जारी है। पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। रूल, सब प्लस एस एम आ प्लस V1 प्लस इंग प्लस OBJ। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। सी प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम अभी अभी पूरा हुआ है। पहचान, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। रूल, सब प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस OBJ। एग्जाम्पल, शी हैज़ फिनिश्ड देयर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है समय के साथ। रूल, सब प्लस हैज़ हैव प्लस बिन प्लस V1 प्लस इंग प्लस सिंस फॉर। एग्जाम्पल, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। 3. भूतकाल पास्ट टेंस, अ पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, बीते समय की कोई एक घटना। पहचान, आ ई ए था, थी, थे। रूल, सब प्लस V2 प्लस OBJ। ध्यान दें, केवल इसी टेंस में V2 लगता है। एग्जाम्पल, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। बी पास्ट कंटिन्यूअस, बीते समय में कोई काम हो रहा था। पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। रूल, सब प्लस वॉज व प्लस V1 प्लस इंग प्लस OBJ। एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। सी पास्ट परफेक्ट, बीते समय में किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका काम। पहचान, चुका था, चुकी थी, लिया था। रूल, सब प्लस हड प्लस V3 प्लस OBJ। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीते समय में किसी निश्चित समय से काम चल रहा था। रूल, सब प्लस हड प्लस बिन प्लस V1 प्लस इंग प्लस सिंस फॉर। एग्जाम्पल, शी हैड बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। 4. भविष्यकाल फ्यूचर टेंस, अ फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर, भविष्य में होने वाला सामान्य कार्य। पहचान, गा, गी, गे। रूल, सब प्लस विल प्लस V1 प्लस OBJ। एग्जाम्पल, आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, भविष्य में किसी समय काम हो रहा होगा। पहचान, रहा होगा, रही होगी। रूल, सब प्लस विल बी प्लस V1 प्लस इंग प्लस OBJ। एग्जाम्पल, शी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। सी फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य में किसी समय तक काम पूरा हो चुका होगा। रूल, सब प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस OBJ। एग्जाम्पल, वी विल हैव रीच्ड बी इवनिंग, हम शाम तक पहुंच चुके होंगे। डी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, भविष्य में किसी समय तक काम जारी रहेगा समय के साथ। रूल, सब प्लस विल हैव बिन प्लस V1 प्लस इंग प्लस सिंस फॉर। एग्जाम्पल, दे विल हैव बिन लिविंग एरे फॉर 5 years, वे यहाँ 5 साल से रह रहे होंगे। 5. मुख्य बातें, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। V1 जोड़ इंग का प्रयोग सभी कंटिन्यूअस 6 टेंस में होता है। V3 का प्रयोग सभी परफेक्ट 3 टेंस में होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मंडे 2010 के लिए और फॉर का प्रयोग समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 hours 5 days के लिए होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, अंग्रेजी व्याकरण का सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला टेंस है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य वर्तमान में सामान्य रूप से होता है, न कि केवल बोलते समय। 1. इसका उपयोग कहाँ होता है? यूसेज, नियमित आदतें, हैबिट्स, जो काम आप रोज या अक्सर करते हैं। एग्जाम्पल, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो बातें हमेशा सच रहती हैं। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, स्थायी स्थितियां, परमानेंट सिचुएशंस। एग्जाम्पल, ही लिव्स इन बिहार, निश्चित समय सारणी, फिक्स्ड टाइम टेबल्स। एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्स एट 10 AM। 2. वाक्य बनाने के नियम, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण नियम एस या एस का प्रयोग है। ए. अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। रूल 1, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल बहुवचन है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल। रूल 2, यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर एकवचन किसी का नाम है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल। बी. नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में हम डू नॉट, डोंट या डज नॉट, डजंट का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे राइट पॉइंटिंग एरो, डू नॉट ही, शी,
इट, नेम राइट पॉइंटिंग एरो डज नॉट, जब डज आता है तो क्रिया से एस हट जाता है। एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, शी डजंट लाइक। सी, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न बनाने के लिए डू डज को वाक्य के शुरू में रखते हैं। एग्जाम्पल, डू यू स्पीक इंग्लिश? एग्जाम्पल, डज ही वर्क हियर? 3. एस या एस लगाने के नियम, स्पेलिंग रूल्स। ज़्यादातर क्रियाओं में सिर्फ एस जुड़ता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां हैं। जिन वर्ब्स के अंत में च, एस ओ एक्स एस एस आता है, वहां एस जोड़ते हैं। गो राइट पॉइंटिंग एरो गो एस, वॉच राइट पॉइंटिंग एरो वॉच एस, फिनिश राइट पॉइंटिंग एरो फिनिशेस। अगर अंत में कॉन्सोनेंट जोड़ वाई है तो वाई हटाकर आई एस जोड़ते हैं। स्टडी राइट पॉइंटिंग एरो स्टड आईज, क्राई राइट पॉइंटिंग एरो सी आर वाइज। अगर अंत में वावल जोड़ वाई है तो सिर्फ एस जोड़ते हैं। प्ले राइट पॉइंटिंग एरो प्ले एस, एंजॉय राइट पॉइंटिंग एरो एंजॉय एस। 4. पहचान शब्द, सिग्नल वर्ड्स। इन शब्दों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होगा। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, एवरी डे, एवरी मंथ। 5. क्विक प्रैक्टिस, अभ्यास। इन वाक्यों को सही रूप में बदलें। माई ब्रदर राइट अंडरस्कोर पोएम्स, वी नॉट गो अंडरस्कोर टू द जिम ऑन संडेज। डू डज अंडरस्कोर योर मदर कुक वेल, वाटर बॉयल अंडरस्कोर एट 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर्स, उत्तर। राइट्स, माई ब्रदर एक वचन है। डू नॉट गो वी के साथ डू लगता है। डज, मदर एक वचन है। बॉयल्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो बोलते समय जारी इन प्रोग्रेस हैं। इसका अर्थ है कि काम अभी शुरू हो चुका है और खत्म नहीं हुआ है। 1. इसका उपयोग कहाँ होता है? यूसेज, बोलते समय चल रहे काम, आई एम ईटिंग नाउ, मैं अभी खा रहा हूँ। अस्थायी स्थितियाँ, टेम्पररी सिचुएशंस, शी इज स्टेइंग विद हर फ्रेंड फॉर अ वीक। निकट भविष्य की योजना, फिक्स्ड फ्यूचर प्लान्स, वी आर लीविंग फॉर दिल्ली टुमारो। बदलती हुई स्थितियाँ, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, मौसम ठंडा हो रहा है। 2. वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मुख्य क्रिया के साथ इनका प्रयोग होता है। ए. हेल्पिंग वर्ब का चुनाव, एम केवल आई के साथ, इज ही शी इट सिंगुलर नेम एक वचन के साथ, आर वी यू दे प्लूरल बहुवचन के साथ। बी. वाक्यों के प्रकार, अफर्मेटिव सकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस इंग प्लस ओ बी जे। एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। नेगेटिव नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस इंग प्लस ओ बी जे। एग्जाम्पल, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस इंग प्लस ओ बी जे। एग्जाम्पल, आर यू लिस्टनिंग टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। 3. इंग लगाने के नियम, स्पेलिंग रूल्स। जनरल, सिर्फ इंग जोड़ें। प्ले राइट पॉइंटिंग एरो प्लेइंग, वर्क राइट पॉइंटिंग एरो वर्किंग। एंड्स इन ए को हटाकर इंग जोड़ें। राइट राइट पॉइंटिंग एरो राइटिंग, स्माइल राइट पॉइंटिंग एरो स्माइलिंग। CVC रूल, अगर क्रिया का अंत कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट से हो तो आखिरी अक्षर को डबल कर दें। सिट राइट पॉइंटिंग एरो सिटिंग, रन राइट पॉइंटिंग एरो रनिंग। एंड्स इन आई ई को वाई में बदल दें। डाई राइट पॉइंटिंग एरो डाइंग, लाई राइट पॉइंटिंग एरो लाइंग। 4. महत्वपूर्ण नियम, स्टेट ऑफ वर्ब्स स्थितिशील क्रियाएं। अंग्रेजी में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता क्योंकि वे किसी क्रिया एक्शन के बजाय स्थिति या भावना को दर्शाती हैं। Verbs of senses, see, hear, smell, taste. Verbs of emotion, love, hate, want, like. Verbs of thinking, know, believe, remember, understand. गलत, I am knowing you, cross mark. सही, I know you, check mark. 5. Quick practice, अभ्यास। दिए गए वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलें। Look, the sun shine underscore. Why you cry underscore. I not watch underscore TV right now. My parents travel underscore to London this week. Answers, उत्तर। Is shining, सूर्य चमक रहा है। Are you crying, प्रश्नवाचक वाक्य। I'm not watching, नकारात्मक वाक्य। Are traveling, अस्थायी भविष्य की योजना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल पास्ट में शुरू हुए लेकिन जिनका प्रभाव या संबंध वर्तमान प्रेजेंट से है। सरल शब्दों में, जब कोई काम अभी अभी खत्म हुआ हो या उसका समय निश्चित न हो। 1. इसका उपयोग कहाँ होता है? यूसेज,
अभी अभी समाप्त हुए कार्य, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई टी। मैंने अभी अभी चाय खत्म की है। अनुभव, एक्सपीरियंसेस, आई हैव सीन द ताजमहल। मैंने ताजमहल देखा है, यानी मुझे इसका अनुभव है। अतीत का कार्य जिसका प्रभाव वर्तमान में है, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। उसका पैर टूट गया है, यानी वह अभी भी चल नहीं सकता। समय का जिक्र न होने पर, आई हैव लॉस्ट माई कीज। मेरी चाबियां खो गई हैं, कब खोई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। 2. वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था V3 पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ए. हेल्पिंग वर्ब का चुनाव, हैज़, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एकवचन के साथ। हैव, आई, वी, यू, दे, प्लूरल बहुवचन के साथ। बी. वाक्यों के प्रकार, अफर्मेटिव सकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस V3 प्लस OBJ। एग्जाम्पल, शी हैज़ कुक्ड फूड। उसने खाना बना लिया है। नेगेटिव नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस OBJ। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी। मैंने वह फिल्म नहीं देखी है। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OBJ। एग्जाम्पल, हैव यू रिसीव्ड मी ईमेल। क्या तुम्हें मेरा ईमेल मिल गया है। 3. विशेष शब्द कीवर्ड्स। प्रेजेंट परफेक्ट में अक्सर इन शब्दों का प्रयोग होता है। जस्ट, अभी अभी, ऑलरेडी, पहले ही, येट, अभी तक अक्सर नकारात्मक वाक्यों में, एवर, नेवर, कभी कभी नहीं, रिसेंटली, लेटली, हाल ही में। 4. सबसे बड़ी सावधानी, कॉमन मिस्टेक। लोग अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में गलती करते हैं। गलत, आई हैव सीन हिम येस्टरडे, क्रॉस मार्क। सही, आई सॉ हिम येस्टरडे, चेक मार्क। क्योंकि येस्टरडे एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट लगेगा। नियम, यदि वाक्य में बीता हुआ समय जैसे 1990 लास्ट नाइट 2 days अगो दिया हो तो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग न करें। 5. क्विक प्रैक्टिस अभ्यास। इन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलें। वी फिनिश अंडरस्कोर अ होमवर्क। यू एवर बी अंडरस्कोर टू गो। ही नॉट कॉल अंडरस्कोर मी येट। द ट्रेन जस्ट अराइव अंडरस्कोर एट द स्टेशन। आंसर्स उत्तर। हैव फिनिश्ड हमने होमवर्क पूरा कर लिया है। हैव यू एवर बिन क्या तुम कभी गोवा गए हो। हैज़ नॉट कॉल्ड उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया है। हैज़ जस्ट अराइव ट्रेन अभी अभी स्टेशन आई है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो अतीत पास्ट में शुरू हुए और अभी भी वर्तमान प्रेजेंट में जारी हैं। इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें कार्य के शुरू होने का समय टाइम दिया होता है। 1. पहचान आइडेंटिफिकेशन। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन साथ में समय का बोध जैसे 2 घंटे से, सुबह से, 2010 से भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह पढ़ रहा है। काम अभी चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। काम पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। 2. वाक्य संरचना सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हैज़ बीन, हैव बीन के साथ मुख्य क्रिया में इंग और समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। ए. हेल्पिंग वर्ब का चुनाव, हैज़ बीन, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एकवचन के साथ। हैव बीन, आई, वी, यू, दे, प्लूरल बहुवचन के साथ। बी. वाक्यों के प्रकार, अफर्मेटिव सकारात्मक, सब प्लस हैज़, हैव प्लस बिन प्लस V1 प्लस इंग प्लस OBJ प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा है। नेगेटिव नकारात्मक, सब प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V1 प्लस इंग प्लस OBJ प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, दे हैव नॉट बिन वर्किंग फॉर 2 days। वे 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, हैज़, हैव प्लस सब प्लस बिन प्लस V1 प्लस इंग प्लस OBJ प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हैव यू बिन वेटिंग एरे फॉर एन आवर। क्या तुम यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हो। 3. सिंस और फॉर का सही प्रयोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। लोग अक्सर यहाँ गलती करते हैं। इसे ध्यान से समझें। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जब काम शुरू होने का निश्चित समय पता हो। एग्जाम्पल्स, सिंस मंडे, सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 o'clock, सिंस चाइल्डहुड। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जब काम की अवधि या समय का अंतराल बताया जाए। एग्जाम्पल्स, फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर 3 months, फॉर 10 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। 4. क्विक प्रैक्टिस अभ्यास। सही रूप, हैज़ बीन, हैव बिन प्लस इंग भरें। इट रेन अंडरस्कोर सिंस लास्ट नाइट। आई लर्न अंडरस्कोर इंग्लिश फॉर 6 months। शी नॉट स्लीप अंडरस्कोर वेल फॉर अ फ्यू days। हाउ लॉन्ग यू वेट अंडरस्कोर फॉर मी।
आंसर्स उत्तर। हैज़ बिन रेनिंग कल रात से बारिश हो रही है। हैव बिन लर्निंग मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। हैज़ नॉट बिन स्लीपिंग वह कुछ दिनों से ठीक से नहीं सो रही है। हैव यू बिन वेटिंग तुम कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ चारों पास्ट टेंस की विस्तृत व्याख्या बिना किसी टेबल या फोटो के दी गई है। 1. सिंपल पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो अतीत में एक निश्चित समय पर पूरे हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें V2 क्रिया का दूसरा रूप का प्रयोग होता है। पहचान, वाक्य के अंत में आ, ई, ए या था, थी, थे आता है। जैसे, वह गया, मैंने देखा। अफर्मेटिव, सकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही रोट ए लेटर। उसने पत्र लिखा। नेगेटिव, नकारात्मक एस। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, डिड आने पर V2 V1 में बदल जाता है। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिड ही राइट अ लेटर। 2. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य अतीत में किसी निश्चित समय पर जारी चल रहा था। पहचान, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज व प्लस V1 प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। वस, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ। व, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे थे। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज व प्लस नॉट प्लस V1 प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटरोगेटिव, विस व प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। 3. पास्ट परफेक्ट टेंस। ये टेंस अतीत के भी अतीत पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए उपयोग होता है। जब अतीत में दो काम हुए हों तो जो काम पहले पूरा हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, I had not seen him before. Interrogative, had plus subject plus V3 plus object. Example, had you finished your work? 4. Past perfect continuous tense. इसका प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य अतीत में किसी समय से शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहा था। इसमें समय, since, for का जिक्र जरूरी है। पहचान, रहा था, रही थी, समय के साथ। Affirmative, subject plus had been plus V1 plus ing plus obj plus since, for plus time. Example, he had been waiting for 2 hours. वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V1 प्लस इंग प्लस obj प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, इट हैड नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V1 प्लस इंग प्लस obj प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हैड शी बिन लिविंग हियर सिंस 2010। महत्वपूर्ण अभ्यास क्विक प्रैक्टिस। क्या आप इन वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं? उसने कल खाना पकाया। मैं कल इस समय सो रहा था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। वह बचपन से इस घर में रह रहा था। Let's dive deeper into the past tense. Since you're previously asked to avoid tables and video links, I will use clear text formatting to explain the nuances, common errors, and advanced rules for each. 1. Simple past tense, advanced details. This tense is used for completed actions. The most important thing to remember is the difference between regular and irregular verbs. The did rule. In negative and interrogative sentences, once you use did, the verb must return to its base form, V1. Correct, I didn't go, V1. Incorrect, I didn't went, V2. Used for habits, we can use simple past for past habits, similar to used to. Example, I played or used to play football every Sunday when I was a kid. Specific time, it is usually accompanied by time adverbs like yesterday, ago, last night, in 1947. 2. Past continuous tense, advanced details. This tense describes an action that was, in the middle of happening, at a specific moment in the past. Interrupted actions, we often use past continuous and simple past together to show that one action interrupted another. Example, I was watching TV, long action, when the phone rang, short interruption. Parallel actions, when two things were happening at the same time. Example, while my mother was cooking, my father was reading the newspaper. Note on stative verbs, just like in the present, verbs like know, love, believe are rarely used in the continuous form. Incorrect,
I was knowing the answer. Correct. I knew the answer. 3. Past perfect tense, advanced details. Think of this as the past of the past. If you are talking about two things that happened in the past, the one that happened first is past perfect. The before, after rule, before action 1 had plus V3 plus before plus action 2 V2. Example, the patient had died before the doctor arrived. After action 2 V2 plus after plus action 1 had plus V3. Example, I went to sleep after I had finished my work. Unfulfilled desires, it is used to express regrets or things that didn't happen. Example, I wish I had studied harder for the exam. 4. Past perfect continuous, advanced details. This shows that an action started in the past and continued up until another point in the past. It emphasizes the duration, how long. Cause of a past result, we use it to show the cause of something in the past. Example, the ground was wet because it had been raining. Past perfect continuous vs. Past continuous, he was tired. Just a state. Past perfect continuous, he was tired because he had been working for 10 hours. Focuses on the duration of the effort. Common mistakes to avoid, हिंदी में. Simple past vs. Present perfect, अगर वाक्य में yesterday या last year जैसे शब्द हैं तो कभी भी his have न लगाएं. गलत. I have seen him yesterday. सही. I saw him yesterday. डबल पास्ट, एक ही वाक्य में दो बार हड जोड़ V3 न लगाएं. केवल पहले वाले काम के लिए हड लगाएं और दूसरे के लिए V2 सिंपल पास्ट. वस्प जोड़ V2, लोग अक्सर I was went बोल देते हैं जो बिल्कुल गलत है. या तो I went सिंपल पास्ट कहें या I was going continuous. प्रैक्टिस टास्क, ट्राई ट्रांसलेटिंग दीज. वह सो रहा था जब मैंने उसे बुलाया. फिल्म शुरू होने से पहले हम सिनेमा हॉल पहुंच चुके थे. मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था. उसने पिछले हफ्ते एक नया मोबाइल खरीदा. फ्यूचर टेंस भविष्यकाल का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो आने वाले समय में होंगे. यहाँ भविष्यकाल के चारों रूपों की विस्तृत व्याख्या दी गई है. 1. सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट. ये भविष्य में होने वाली किसी सामान्य घटना या कार्य को दर्शाता है. पहचान, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है, जैसे वह जाएगा, मैं खाऊंगा. अफर्मेटिव, सकारात्मक. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. नोट, आधुनिक अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, ही, शी, दे के साथ विल का प्रयोग मान्य है. एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू टुमारो. मैं तुम्हें कल फोन करूंगा. नेगेटिव, नकारात्मक. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, वोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही विल नॉट कम टू द पार्टी. इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी. 2. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इसका प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी चल रहा होगा. पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी फ्लाइंग टू लंदन. कल इस समय मैं लंदन के लिए उड़ान भर रहा हूंगा. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस V1 प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, she will not be sleeping at 10 p.m. Interrogative, will plus subject plus be plus V1 plus ing plus object. Example, will they be playing cricket in the evening? 3. Future perfect tense. ये दर्शाता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई कार्य पूरा हो चुका होगा. इसमें अक्सर बाय तक का प्रयोग समय के साथ होता है. पहचान, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा. Affirmative, subject plus will have plus V3 plus object. Example, I will have finished my project by Monday. मैं सोमवार तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूँगा. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, he will not have reached home by now. Interrogative, will plus subject plus have plus V3 plus object. Example, will you have retired by 2040? 4. Future perfect continuous tense. इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे. इसमें कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है. पहचान, रहा होगा, समय के साथ. अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस इंग प्लस OBJ प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लिविंग एरे फॉर 5 years. अगले महीने तक मुझे यहाँ रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस V1 प्लस इंग प्लस टाइम. एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग. Interrogative, will plus subject plus have been plus V1 plus ing plus time. Example, will they have been waiting since morning?
कुछ महत्वपूर्ण बातें, एडवांस पॉइंट्स। विल वी एस गोइंग टू। विल का प्रयोग अचानक लिए गए फैसलों या भविष्यवाणियों के लिए होता है। गोइंग टू का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जिनकी योजना पहले ही बन चुकी है। एग्जाम्पल, आई विल ओपन द डोर, अचानक फैसला, वी एस आई एम गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, योजना। टाइम क्लॉजेस, जब भविष्य के दो कार्यों की बात एक ही वाक्य में हो तो इफ, वन, बिफोर, आफ्टर वाले हिस्से में सिंपल प्रेजेंट लगता है और दूसरे में सिंपल फ्यूचर। करेक्ट, इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। अगर बारिश होगी तो मैं घर रुकूंगा। इनकरेक्ट, इफ इट विल रेन आई विल स्टे होम। अभ्यास, प्रैक्टिस टास्क। इन वाक्यों का अनुवाद करने का प्रयास करें। अगले साल वह डॉक्टर बन जाएगा। जब तुम आओगे मैं खाना बना रहा हूँगा। अगले रविवार तक हमने अपना कोर्स पूरा कर लिया होगा। मैं 2027 से वकालत लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँगा। अंग्रेजी में सेंटेंस स्ट्रक्चर वाक्य संरचना का अर्थ है शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ताकि उनका सार्थक अर्थ निकल सके। अंग्रेजी वाक्यों का सबसे बुनियादी ढांचा एसवीओ नियम पर आधारित होता है। 1. बुनियादी संरचना, एसवीओ नियम। एक साधारण अंग्रेजी वाक्य 3 मुख्य भागों से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट, कर्ता जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे राम, ही, द डॉग। वर्ब, क्रिया जो काम हो रहा है या स्थिति को दर्शाता है, जैसे ईट्स, इज, रनिंग। ऑब्जेक्ट, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जैसे अ मैंगो, स्कूल, हिम, ऊ। उदाहरण, राम एस प्लस ईट्स वी प्लस अ मैंगो ओ। ही एस प्लस एस वी प्लस अ स्टूडेंट ओ। 2. वाक्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। संरचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ए. सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसमें केवल एक ही स्वतंत्र उपवाक्य इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी। बी. कॉम्पाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। इसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जिन्हें कंजंक्शंस एंड, बट और सो से जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी एंड मेरी लाइक्स टी। सी. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य में क्लॉज और कम से कम एक आश्रित उपवाक्य डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इन्हें बिकॉज, ऑल्दो, इफ, सिंस, हु जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, आई मिस द बस बिकॉज आई वोक अप लेट। डी. कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें कम से कम 2 स्वतंत्र और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एग्जाम्पल, आई मिस द बस बिकॉज आई वोक अप लेट बट आई स्टिल रीच्ड ऑन टाइम। 3. अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। जब हम बात करते हैं तो वाक्यों के भाव अलग अलग होते हैं। असर्टिव, डिक्लैरेटिव, कथनात्मक जो कोई जानकारी या तथ्य देते हैं। पॉजिटिव, ही गोज टू स्कूल। नेगेटिव, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछते हैं। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। इंपेरेटिव, आज्ञावाचक जो आदेश, प्रार्थना या सलाह देते हैं। इसमें अक्सर यू छिपा होता है। एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द डोर। स्लैश, स्टॉप टॉकिंग। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयबोधक जो अचानक उठने वाली भावनाओं को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर। स्लैश, अलास, ही फेल्ड। 4. वाक्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक, कॉम्पोनेंट्स। फ्रेजेस, वाक्यांश, शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ तो होता है पर वह पूर्ण वाक्य नहीं होता, जैसे इन द कॉर्नर। क्लॉजेस, उपवाक्य, शब्दों का वह समूह जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जैसे इफ इट रेन्स। मॉडिफायर्स, वे शब्द जो संज्ञा या क्रिया की विशेषता बढ़ाते हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। स्ट्रक्चर, द आर्टिकल, फास्ट, एडीजे, रनर, एस, रन्स क्विकली, एडीवी। 5. वाक्य संरचना में होने वाली सामान्य गलतियां, कॉमन एरर्स। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स, अधूरा वाक्य जिसमें या तो सब्जेक्ट गायब हो या वर्ब। इनकरेक्ट, बिकॉज आई वाज टायर्ड। यह अधूरा है। रन ऑन सेंटेंसेस, 2 स्वतंत्र वाक्यों को बिना किसी विराम चिन्ह या कंजंक्शन के जोड़ देना। Incorrect, I like cats, they are cute. Correct, I like cats because they are cute. Subject verb agreement, कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का न होना। Incorrect, they is going. Correct, they are going. Syntax, वाक्य विन्यास व्याकरण का वह हिस्सा है जो हमें सिखाता है कि किसी वाक्य को व्याकरणिक रूप से सही बनाने के लिए